Hello everyone, I'm Deepti Singh, your admissions counselor for Japanese University. So today's video is the second video in our series of management practices specifically born in Japan. In our previous video, we spoke about Kaizen, जो कि एक continuous improvement का एक mindset होता है और specifically steps होते हैं that are followed in organizations so that all the employees and the management can focus on small little improvements every time and achieve perfection eventually. And in today's video we are going to discuss one more concept which was originated in Japan and it is adopted by many companies across the world now. Why am I bringing these management concepts to you which were originated in Japan? Is because I want you to understand that Japan is definitely one of the countries where you can consider to study management studies. Japan has given some wonderful management principles and ideas to the entire world, and many companies worldwide they adopt them and they have improved their efficiency, production, and it has helped them immensely in reducing their wastage. So please stay tuned for this entire series. I'm sure as a student you will find immense value learning about these principles, and for some of you who think you would like to study management as a long-term career, you should approach us and find out which are the best courses and universities in Japan that you can apply to, and we will be very happy to help you with that. So alright, so today's video we are going to start now, and today's video is going to be about 5S philosophy. Now what is 5S philosophy? I'll come to that in a while. Before I start with the 5S philosophy, एक छोटी सी स्टोरी है दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. सो अभी कुछ दिन पहले की बात है. आई वॉज एट द पेट्रोल पम्प और मैं वहाँ पे पेट्रोल पम्प की लाइन में लगी हुई थी पेट्रोल भरवाने के लिए. और जैसे ही मेरा नंबर आया तो द फेलो हु वाज फिलिंग द पेट्रोल, और उसके बाद में जिसको मैंने उससे जब रसीद मांगी तो वो अचानक से गायब हो गया. सो ही वेंट इनसाइड टू फेच समथिंग. मैं सोच रही हूँ वो क्या लेने के लिए अंदर गया है, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर हिम एंड इट वॉज ईजिली ही टुक अबाउट 10 to 15 minutes टू कम बैक. 10-15 मिनट बाद जब वो बाहर आए और उन्होंने बताया कि वो जो रसीद जिस पे प्रिंट होती है वो रोल जो था वो ख़त्म हो गया था. सो ही हैड गॉन टू गेट दैट रोल. That left me wondering कि क्या ये प्रॉब्लम कितने छोटे से एक स्टेप से क्या इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता. सो इस पूरे प्रोसेस में ये जो 15 मिनट थे, वी लॉस्ट सो मच टाइम. आई लॉस्ट माई टाइम. देयर वर सो मेनी पीपल इन द क्यू बिहाइंड मी. उन सबका भी टाइम खराब हुआ. दिस इज बेसिकली प्रोडक्टिविटी लॉस, राइट. एंड उसका खुद का भी अपना टाइम खराब हुआ. सो इतने सारे लोगों का कंबाइंड टाइम खराब हुआ. एंड नॉट जस्ट दैट, आई मीन दिस इज समथिंग दैट कुड हैव बीन सॉल्व विद अ सिंपल स्टेप. ही कुड हैव केप्ट some extra rolls near his table and near the pump wherever he was standing, and that could have avoided such a hassle. So coming to 5S, 5S exactly does this. So 5S implementation से ऐसी जो inefficiencies होती हैं सिस्टम में वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं. और मैनेजमेंट में ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है. कैसे यूज़ होता है, वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड दैट आउट. सो ऑलराइट, सो वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज़ 5S. Basically 5S is a philosophy that was developed by Mr. Hiroyuki Hirano in Japan, and this was in the post-war era that it was developed. और जब ये डेवलप हुई उसके बाद में it was adopted by Toyota and many other companies. Toyota religiously follow करता है as they have stated in many
forums, but there are other companies also that implement 5S regularly. So इस 5S philosophy को basically ये जो concept है ये एक वर्क प्रैक्टिस है जिससे कि एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, कॉस्ट कटिंग होती है, वेस्टेज नहीं होती है एंड इवेंचुअली लॉन्ग रन में डेफिनेटली एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है बाय taking simple small steps on everyday basis. So what are these steps? Basically S से start करते हुए 5 Japanese words हैं सेरी, सेतो, सेसो, सेकेत्सु एंड शित्सुके. So ये 5 words हैं, इनको abbreviate करके 5S बोला जाता है. अब ये क्या है? सेरी का मतलब होता है सॉर्ट, सेतो होता है सेट करना, सेसो इज टू शाइन एंड then we have seiketsu which means to standardize the process and shitsuke का मतलब होता है discipline. So ये कैसे एक पूरा process बनता है? So let's look at that. So basically आप कोई भी एक वर्क प्लेस इमेजिन कर लीजिए, जैसे कि ये ऑफिस आप इमेजिन कर सकते हैं या कोई भी फैक्ट्री एक इमेजिन कर सकते हैं. सो अगर कोई फैक्ट्री है मान लीजिए, वहाँ पर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज दैट वी सॉर्ट व्हाट इज़ अनवांटेड, राइट. हमें जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने आसपास, वी शुड बी एबल टू टेक दोज अनयूज्ड आइटम्स अवे. दैट इज सॉर्टिंग अनयूज्ड आइटम्स एंड पुटिंग देम अवे. सेकेंड स्टेप इज सेट. सेट जो है दिस इज टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग नीडेड इन प्रॉपर प्लेस, राइट. सो ऑर्डरलीनेस इसको बोलते हैं सेटो, सेट. Third is to shine. Shine is more related to cleaning. Now you must be wondering कि cleaning how is that important? So मैं example देती हूँ, जैसे कि अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो अगर आपकी फाइल सारी इधर उधर हैं, they are disorganized, obviously you are going to waste a lot of time looking for the right thing at the moment when you need it, and that's how you are losing your efficiency and unnecessarily because of the clutter. Similarly अगर आप इसी चीज़ को अगर आप मशीनरी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं, अगर आपकी मशीन जो है वो क्लीन है, प्रॉपरली ऑयल्ड है, ग्रीस्ड है, तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और वो लंबी चलेगी. सो क्लीनलीनेस इज डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी वर्क प्लेस एंड इट शुड बी कंसिडर्ड दैट वे. फोर्थ इज स्टैंडर्डाइजेशन. सो स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. सो चेकलिस्ट्स होती हैं, चेकलिस्ट से आप कर सकते हैं ऐसा. आप और भी तरीके यूज़ कर सकते हैं टू मेक श्योर दैट एवरीबडी इज़ फॉलोइंग द सेम प्रोसेस एंड दैट विल हेल्प यू एरर फ्री होने के लिए काफ़ी हेल्प करता है. आपको एरर्स नहीं होंगी, बाकी लोगों को भी पता होगा क्या करना है. इसमें एक और एस्पेक्ट आ जाता है विजुअलाइजेशन का, जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आप चार्ट में सामने लगा सकते हैं अपने ऑफिस में, विच विल simplify the task. You should do that, and these are small steps but they definitely have a long term impact. Fifth is sustain. So sustaining is very important क्योंकि आपने भी देखा है कि अगर घर की भी सफाई करते हैं तो वो रोज़ करनी पड़ती है. सिमिलरली वर्क प्लेस पे भी इफ़ वी आर सॉर्टिंग, इफ़ वी आर क्लीनिंग, इफ़ वी आर ऑर्गेनाइजिंग, इट हैज़ टू बी डन एवरी डे. ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया अगर आपने क्लीनिंग और सॉर्टिंग एंड इफ़ यू हैव पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर तो वो वैसे ही तो नहीं रहेगा. 2 दिन बाद ऑफ कोर्स यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स. आपने इधर की चीज़ उधर रख दी होगी, बट इफ़ यू आर conscious and you dedicate time on organizing every day for 5 minutes, 10 minutes, then you can definitely continue with the same organized environment around you. So ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर एक जगह पे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं. कुछ इंडस्ट्रीज जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. सो इट स्टार्टेड विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोर्स एंड टोयोटा इज़ अ पायनियर. उन्होंने बहुत रिलीजियसली इसको इम्प्लीमेंट किया है, बट उसके अलावा भी काफ़ी इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल की अगर हम बात कर लें तो मेडिकल में यू कैन सॉर्ट ड्रग्स आउट, यू कैन पुट इक्विपमेंट्स इन प्लेस, यू कैन फोकस ऑन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस.
राइट। रिटेल में कितना इम्पोर्टेंट है, रिटेल में इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप मान लीजिए आप किसी सुपरमार्केट का एग्जांपल ले लीजिए, तो सुपरमार्केट में रोज़ पेरिशेबल गुड्स आ रहे हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, तो अच्छे जो नहीं है उनको डिस्कार्ड करना कितना ज़रूरी है, जो पुरानी जो एक्सपायरी डेट आ गई है उन आइटम्स को डिस्कार्ड करना या फिर उनको आगे लगाना कितना ज़रूरी है। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट कैन बी डन इन रिटेल। हॉस्पिटैलिटी, सो होटल्स हो गए, उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डर, क्लीनलीनेस, ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूलेट पैकर्ड HP जो कंपनी है, दे ऑल्सो फॉलो 5S in their manufacturing. So they keep their computer parts sorted, properly labeled, and it helps them streamline their मैन्युफैक्चरिंग, और इसकी वजह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड भी बढ़ती है। जनरल ऑफिस सेटिंग्स, एक सिंपल सा ऑफिस जैसे कि हमारा ऑफिस है, यहाँ पर भी हम अगर एक यूनिवर्सिटी की फाइल्स एक साथ में होंगी, एक जो रिक्वायर्ड डेटा है जो डेली बेसिस पे चाहिए वो एकदम सामने होगा। डेफिनेटली दीज आर स्मॉल चेंजेस दैट कैन बी ब्रॉट टू एनी वर्क प्लेस। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा मेरी कोंडोज मेथड ऑफ क्लीनलीनेस, क्वाइट पॉपुलर, एंड देर आर in fact there is a documentary on it also, right? So this is also similar, maybe this is more from a workplace perspective and at a larger scale. So the benefits of implementing these 5S would be to reduce wastage. अब आप सोचिए कि अगर आपके पास पहले से कोई चीज़ है, आप जब ये करते हैं सॉर्टिंग की जो एक्टिविटी है, जो आपने पहले फर्स्ट स्टेप है आप करेंगे, जब आप डिस्कार्ड करेंगे जो चीज़ अच्छा नहीं है, देन यू विल नो एग्जैक्टली आपके स्टॉक में कितना है, तो उसकी वजह से आप प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकते हैं कि आप एक्सेसिव वो काम ना करें। सर्विस इंडस्ट्री में भी ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो सकता है। हम ये देख सकते हैं कि ऑलरेडी क्या काम हो चुका है, बैकलॉग ले सकते हैं, सो दैट वी डोंट एफिशिएंसी वेस्ट ना हो। सो दीज बेसिकली या फिर हम चेकलिस्ट बना सकते हैं, हम लोग वर्क फ्लो बना सकते हैं। So these small steps definitely help us in streamlining the process and reducing errors and defects in our finished product. So these basically this was 5S, and I hope you enjoyed learning about it, and at some point of time you will find this useful even later part in your life when you're working or maybe for your academic purposes. So please keep following this channel, and if you haven't, subscribe the channel and like the video.